3 بیٹیاں اور ایک بیوی کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دینے والا سیشن جج۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے راج کووا فیملی کے بارے میں۔ ناظرین، راج کووا فیملی سیشن جج ہوتا ہے جس کی پوسٹنگ ہوتی ہے ضلع اسم سے تحصیل ڈونگری میں 1969 میں۔ ناظرین گرامی، وہ اپنے گھر سے ڈونگری شفٹ ہو جاتے ہیں اور جا کے سرکاری عمارت کی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک بنگلہ الاؤڈ کیا ہوتا ہے لیکن اس کی صاف صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ دنوں بعد صفائی وغیرہ کا کام ہو جاتا ہے، انہیں نوکر چاکر، گاڑی اور ڈرائیور وغیرہ ملا ہوتا ہے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ بنگلے میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 سال کی اس کی سروس رہ چکی ہوتی ہے۔ 1 سال بعد 1970 میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس کی 2 بیٹیاں جو کہ پڑھائی کر رہی تھی، بڑی بیٹی نے CSS کر رکھا تھا اور اس کی پتنی، یہ تینوں بیٹی، باپ اور بیوی تینوں ڈونگری میں اکٹھے تھے، لیکن 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو کہ اپنے ماما پردہ سوا کے پاس رہتی تھی۔ ناظرین گرامی، پردہ سوا اومنڈو راج کولا میں رہتا تھا، یہاں سے یہ فیملی بھی آئی تھی۔ یوں ناظرین گرامی، ماما کے پاس بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں اپنے والدین، اپنی بہن اور والدین کے پاس آ کے چکر لگا جایا کرتی تھی۔ یوں یہ ملن ملان چل رہا تھا کہ ایک دن جج صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد بنگلہ خالی کرنا تھا۔ نیا جج آ کے گیسٹ ہاؤس میں رک چکا تھا، لیکن جج صاحب بنگلہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب بھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے جج، سیشن جج، تو اس کے پاس 2-3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اپنی الگ جگہ میں ارینج کرنے کا۔ ایسے ہی اس کے بھی وہ 3 مہینے والا ٹائم چل رہا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ ہوتا کیا ہے، کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے، اور ٹویسٹ کیوں آتا ہے یہ ہم آگے جا کے پتہ کریں گے، لیکن ایک چیز کی جو سمجھ نہیں آئی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ 2 چھوٹی بیٹیاں ماما کے پاس ہوتی ہیں، بڑی بیٹی خود کے پاس ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے۔ وہ بندہ فون کرتا ہے اپنے سالے کو جو کہ اس کا نام پردہ سوا ہوتے ہیں، وہ DIG ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب سالہ DIG، بہنوئی سیشن جج، سالے کے پاس 2 بیٹیاں، وہ اپنے سالے کو بولتا ہے کہ میری دونوں بیٹیوں کو ڈونگری میرے پاس بھیج دو، ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے اور ریٹائرمنٹ میری ہوگی تو ریٹائرمنٹ کی خوشی میں میلہ بھی دیکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھٹیاں بھی انجوائے کرنی ہے۔ لیکن کیونکہ ناظرین گرامی جو بیٹیاں تھیں ان کی ایگزام ہو رہے تھے، تو ان کے ماما نے منع کر دیا، بیٹیاں نے بھی خود منع کر دیا کہ والد صاحب ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں تو ہمارے سال خراب ہو جائیں گے، ہم نہیں آ سکتے۔ تو ان کا باپ چپ کر جاتا ہے، کہتا ہے چلو ایگزام دینے کے بعد آ جانا۔ یوں ناظرین گرامی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جج صاحب کی طبیعت، موڈ تھوڑا سا آؤٹ سا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ملازموں کو بلاتا ہے، بلا کے وہ واش روم میں ان کو لے کے جاتا ہے۔ اب واش روم جو ہوتا ہے اس کا جو روشن دان ہوتا ہے اس کے باہر ایک درخت لگا ہوتا ہے اور درخت کی ٹہنیاں اس روشن دان کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے نوکر کو بولتا ہے کہ یار یہ ٹہنیاں کاٹ دو، یہ نہ ڈسٹرب کرتی ہیں واش روم میں جب میں جاتا ہوں۔ تو نوکر صاحب ٹہنیاں کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب 2-3 دن بعد پھر کہتے ہیں یہ درخت بھی کاٹ دو، جو واش روم کی بائک سائڈ پہ لگا ہوا تھا وہ درخت بھی کٹوا دیتا ہے۔ کچھ دن اور گزرتے ہیں تو جج صاحب اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ یہاں پہ نا ایک بڑا سا کھڈا کھودو، چورس سا کھڈا، بڑا سا چورس سا ہو اور 5-6 فٹ نیچے بھی گیا ہو، ہم نا یہاں پہ پودے لگائیں گے، پھول بوٹے لگائیں گے۔ تو ملازم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ گڈھا کھود دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، گڈھا کھودے 15-20 دن ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب نہ کوئی پودا لے کے آتے ہیں، نہ ہی ملازموں کو آرڈر دیتے ہیں کہ کھڈے کا کیا کرنا ہے۔ کچھ دن بعد وہ آگے والا جو سین ہوتا ہے وہاں پہ ایک ملازم کو کہتے ہیں یہاں پہ بھی کھڈا کھود دو۔ ملازم کہتے ہیں سر آپ نے یہاں پہ کھڈا کھود کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے پھول لگانے ہیں تاکہ جو نیا سیشن جج آئے نا وہ دیکھ کے ہماری تعریف کر سکے کہ واقعی ان لوگوں نے بنگلے کی حالت صحیح رکھی تھی اور سنبھال رکھا تھا۔ ملازم آگے بھی ایک بڑا سا کھڈا کھود دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں اتنوں دنوں میں ان کے ایگزام ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو والد ان کو دوبارہ پھر کال کرتا ہے کہ بھائی بچوں کو بھیج دے۔ ماما کا اس بار بھی بھیجنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن باپ سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ میری بیٹی ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھیج دے، ہم نے یہاں پہ انجوائے کرنا ہے۔ ماما کہتا ہے ٹھیک ہے، 1-2 دن تک آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، گھر میں رات کو
जज साहब, उसकी बीवी और बड़ी बेटी सोती हैं। मुलाजिम देखते हैं, जो करीब के मुलाजिम होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं, जो दूर के होते हैं वो वहाँ पे ही जो साइड में रूम बने होते हैं बंगले के साथ गार्ड्स वगैरह के रहने के लिए, उनमें अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को सब ये देखते हैं कि पूरी फैमिली बंगले में सोई है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो नोटिस करते हैं कि जज साहब अकेले ही घर से बाहर निकल रहे हैं, अकेले ही बाहर जा रहे हैं गाड़ी लेके, वापस भी अकेले आ रहे हैं। उनकी बीवी और बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो पीछे वाला खड्डा था उसके ऊपर अब मिट्टी भरी हुई है और वो बंद किया हुआ है, और मुलाजिम जब देखते हैं जज साहब उनके ऊपर ना उनको लेवल कर रहे होते हैं मिट्टी को, सुबह 10-11 बजे। यानी रात को जज साहब ने कोई गेम डाली होगी या जो भी होगा, सुबह वो लेवल कर रहे होते हैं। नजरीन, मुलाजिम पूछते हैं कि सर आपकी बीवी और बेटी नज़र नहीं आ रही। तो जज साहब कहते हैं कि उन्हें ना अचानक डोंगरी में एक काम याद आ गया शहर में, वो उधर चले गए हैं, तो वो आ जाएंगी शाम को, अगर ना आई तो फिर वो मेरे वालिदैन रहते हैं दिल्ली में, उनके पास चली जाएंगी। मुलाजिम खामोश हो जाते हैं, जी ठीक है। अगले दिन दोनों बेटियां छोटी भी आ जाती हैं। छोटी बेटियां आती हैं, वो पूछती हैं अम्मी और बड़ी बहन की तरह, वो कहता है वो दिल्ली में गई है तुम लोगों की दादी के पास। अब वो भी चुप कर जाती हैं, लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा होता है। लेकिन खैर 2 दिन बाद रात को फिर पूरी फैमिली सोती है, बाप होता है, 2 छोटी बेटियां होती हैं, छोटी तो नहीं होती, जवान होती हैं, लेकिन बड़ी बेटी से छोटी होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रात को वो भी गायब हो जाती हैं, और जो सामने वाला खड्डा होता है अब जैसा सुबह को उसको लेवल कर रहे होते हैं। मुलाजिम रात कहते हैं सर वो आप की बेटियां आई थी। तो वो कहता है जी वो भी अपनी वालदैन के पीछे, अपनी अम्मी और बड़ी बहन के पीछे दिल्ली चली गई हैं दादी अम्मा के पास। मैं यहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगा, मैंने भी चला जाना, जैसा आपको बंगला खाली करके देना है हम लोगों ने। वो कहते हैं जी ठीक है। होता भी कुछ यूँ 3-4 दिन बाद जैसा वहाँ पे गायब हो जाते हैं। अब जो पीछे उनका साला होता है DIG, उसको समझ नहीं आती कि बच्चियों ने आधे एग्जाम दिए हैं, बाप ने इतनी सख्ती के साथ मंगवा लिया है, तो अब बाप भी फ़ोन नहीं सुनता, बच्चियां जो हैं वो भी फ़ोन नहीं सुनती, बहन भी फ़ोन नहीं सुनती। खैर वो ना ऐसे ही कहता है कि वैसे नहीं सुन रहे होंगे, कोई होगा मसला। 5-7 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन कोई बंदा भी फ़ोन नहीं सुनता, उसे टेंशन होना शुरू हो जाती है। वो उधर से उठता है, अपने घर से डोंगरी में आता है, सेशन जज के बंगले में आता है, वहाँ पे नया सेशन जज होता है, उनसे पूछता है कि पुराने वाला, तो वो कहते हैं हमें तो नहीं पता। वो मुलाजमों से पूछता है, मुलाजिम बताते हैं कि सर इसी तरह पहले उनकी दोनों बीवी और बेटी गई, उन्होंने बोला दिल्ली चली गई हैं, फिर छोटी 2 बेटियां आई हैं वो चली गई, दिल्ली चली गई हैं जी, तो वो खुद भी चला गया। अब DIG साहब थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि आखिर किधर हमारा बहनोई चला गया और उनकी फैमिली किधर है। लेकिन पुलिस वाले अगर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें तो मुजरिम को कब्र से भी निकाल लाते हैं। इसलिए जनाब DIG साहब ने वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनको, अथॉरिटी को, मतलब इस चीज़ के बारे में बताया और तलाश शुरू कर दी गई। अब नौकरों से तसल्ली से पूछा सख्ती करके कि जज साहब जब आखिरी दफ़ा गए हैं किधर गए हैं। उन लोगों ने एक गाड़ी वाले का नाम लिया कि सर फलां गाड़ी रेंट की आई थी, फलां बंदा जानने वाला था हमारा, उस बंदे की गाड़ी को वो लेके गए थे, पता नहीं अभी उसके साथ किधर गए थे, लेकिन उसके साथ आखिरी दफ़ा गए थे वापस में। उस ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर को पकड़ने के बाद नाज़रीन ग्रामी ड्राइवर के साथ सख्ती करेगी, तो उसने साथ वाला जो शहर था ज़िला असम, वहाँ पे नाज़रीन ग्रामी उसने बताया कि मैं फ़लाँ होटल के पास उनको छोड़ के आया हूँ। उन लोगों ने वहाँ पे एक कमरा बुक कर रखा था जज साहब ने। तो पुलिस साथ लेती ड्राइवर को, उस होटल में जाती है, वहाँ पे जाके वो कमरा नंबर बताते हैं, रिसेप्शन से नीचे से पूछते हैं कमरा नंबर, ऊपर जाते हैं वो कमरा नंबर बताते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं कि सामने क्या देखते हैं, तो उनका बहनोई खड़ा होता है। पुलिस और DIG साहब अंदर चले जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पे, मेरी भांजी और बहन कहाँ है। वो पहले तो टाल मटाल करता दिल्ली है ऐसे ऐसे। वो कहते हैं चलो हमारे साथ चलो। वो कहता है मैं वॉशरूम से हो रहा हूँ। वॉशरूम में जाता है तो अपना वो उल्टा निकालता है और अपने पेट में फेरना शुरू कर देता है और गले में फेरना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें से इतनी चोट नहीं लगती। वो खंजर निकालता है, फिर छुरा और अपने पेट में मार लेता है। DIG साहब और बाकी पुलिस वाले उठा के उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल 2 महीने तक उसकी रिकवरी नहीं होती। 2 महीने बाद IG साहब आते हैं, उससे सारा कुछ पूछते हैं। पहले तो टाल मटाल से काम लेता है, लेकिन IG साहब उसे कुछ समझाते हैं या जो भी करते हैं, ये सख्ती करते हैं, वो मान जाता है। कहता है जी
पहले कहता है कि दोनों पहले बीवी और बेटी घर से पता नहीं अचानक गायब होगी, पीछे छोटी बेटियां हैं वो भी अचानक गायब होगी। लेकिन जब मज़ीद सख्ती होती है तो वो कहता है कि मैंने बेटी बड़ी को और बीवी को कत्ल करके जो किचन की बैक साइड वाला खड्डा था वहाँ पे दफना दिया, छोटी दोनों को कत्ल करके आगे दफना दिया। नाज़रीन, पुलिस वाले जाते हैं और एक मुलाजिम ने भी जज साहब का साथ दिया होता है। मुलाजिम को पकड़ लेते हैं उधर जाके, मुलाजिम से भी तफ्तीश करते हैं। मुलाजिम बताता है कि इस खड्डे में 2 दफनाई है मैयत। वो खड्डा पीछे वाला खोला जाता है, उसमें से उसकी बड़ी बेटी और उसकी बीवी की मैयत निकल आती है। तो उनके वो सैंपल लेते हैं। जज साहब जो नए सेशन कोर्ट के जज होते हैं वो भी उनके हाँ खड़े होते हैं, क्योंकि जज से इजाज़त लेके कब्र खोलते हैं। तो वो जनाब उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है बीवी और बड़ी बेटी है। और सामने वाले खड्डे से जो घर के आगे था उनसे 2 छोटी बेटियों की लाशें निकाली जाती है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, जो मुलाजिम मज़ीद बताता है 3-4 और छोटे छोटे खड्डे बताता है जिनसे उनके कपड़े वगैरह निकल रहे होते हैं, इनसे जूते निकल रहे होते हैं। और जो जज साहब ने उनको कत्ल किया होता है, कत्ल कैसे किया होता है कि पहले वो नशा देता है, जब वो बेहोश हो जाती है फिर खंजर मार मार के उनके गले काट देता है। तो उसमें जज साहब के 2 सूट लगे, एक तो जिस दिन उसने अपनी बीवी और बेटी को मारा, दूसरा जिस दिन उसने दोनों बेटियों को मारा। 2 सूट खून से लथपथ थे, वो दोनों सूट भी उनके जूतों के साथ एक खड्डे में दफन किए हुए थे। मुलाजिम ने सब कुछ बता दिया और सूट वगैरह निकलवा दिए। जो नाज़रीन ग्रामी, 1 साल बाद जज साहब पूरे रिकवर हो चुके। रिकवर होने के बाद नाज़रीन ग्रामी जज साहब के ऊपर ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद जो उसका मुलाजिम था उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और जज साहब को सजाए मौत लिख दी गई। नाज़रीन, ये इंडिया का पहला सेशन जज था जिसको कत्ल में सजाए मौत हो रही थी। अब जज साहब ने क्या किया कि 1 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी जो फांसी है वो नहीं रुक सकती। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दी उन लोगों ने, क्योंकि वो खुद जज था, सारे लॉ जानता था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला दोबारा सुना, फिर से 1 साल लग गया फैसला सुनने के बाद। पहले तो ये था कि अदालत ने जो मुजरम साथी था मुलाजिम उसको छोड़ दिया था। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस रीओपन हुआ, अपील लगी, तो जज साहब ने उसे फांसी बरकरार रखी। सेशन जज की फांसी बरकरार रखने के बाद जो मुलाजिम को पहले रिलीज दे के छोड़ दिया गया था उसको दोबारा गिरफ्तार करके 10 साल की उसे भी सज़ा दी गई। उसे सज़ा इस वजह से दी गई कि जब सेशन जज साहब ने गलत काम किया था तो बजाय आप इनको समझाते, इनको रोकते, आपने तो इनका साथ दिया। क्यों नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के ये पहले सेशन जज थे कि जिनको अपनी ही अदालत में, जिस अदालत में कभी वो सेशन जज लगे हुए थे उसी ही अदालत में सज़ाए मौत होती है और उसके बाद फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में भी सज़ाए मौत होती है।